Hey everyone, today we'll do ITR filing case study 4. I'll just show you in which head we have to put the things because I already solved this question, and if I'll show you here solving this question there is lots of technical glitches, so I'll not be able to show you. So I just did the question before, and here I'll show you कि कौन सा head किस में जाएगा and why so. So, as you can see the question on the screen, like it has provided the basic details first, उसके बाद income details है. तो सबसे पहले हम part A journal में we'll fill the basic details like first name, and remember everything that is with red color, this is mandatory to put it on, like we have to fill these things. So yeah, we'll fill everything, first name, middle name, last name, pen, status में individual जाएगा, flat, area, date of birth, और country state में here we have the drop down, तो drop down का use करना है अपने को, email address given है, mobile number given है, residential status यहाँ पे देखो ordinary resident है तो yes he is a resident of India, तो यहाँ पे drop down है, resident में select कर लेंगे, and here field in response to notice under section, तो यहाँ पे we have to select on or before due date in every question. It is same for every question, we have to select this on or before due date. Now, are you opting for new text regime? So we'll say no, we are not opting for new text regime. And here one extra thing in this question is, it is given that person is a director in some company. So in the director wala column, like here, whether you are a director in company or not, so here you will write yes, drop down mein jaake. Now we'll select the details. Everything is given in the director wala column, director in any company. किस company में? Ghanshyam Malts Limited. Type of company क्या है? Domestic. It is PAN number is given, DIN given, or whether listed or unlisted, it is given that it has listed shares. Or baki elsewhere, if you validate the show and if it says कि you have not filled the details, so everywhere it is no. बाकी आपके basic details यही हैं, और on or before date आएगा, resident आएगा, no आएगा text regime पे, और नीचे वाले details director if it's given, otherwise सब में no होता है, और यहाँ से आप you can just validate this section from here. So now, as I already did this question, I'll not validate it. Moving on, we'll go to schedule S, that is salaries wala part. Now see, in the income details में सब कुछ is given. Basic salary is given, transport allowance that is fully taxable it is given, per shifts is given, children education allowance and leave salary is given. So basically पहले यहाँ पे एम्प्लॉयर के डिटेल्स अपने को फिल करने, नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर एवरीथिंग इज गिवन. तो पिन नंबर, टाउन, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में अदर्स जाएगा, गोदरेज मार्केटिंग लिमिटेड इट्स द नेम ऑफ द एम्प्लॉयर. फिर हम अपना स्टार्ट कर देंगे विद द बेसिक सैलरी दैट इज गिवन 1,94,10,000. विल जस्ट पुट इट ऑन. और ट्रांसपोर्ट अलाउंस फिर ड्रॉप डाउन तो नहीं मिलता है, तो विल पुट इट अंडर द सेक्शन अदर अलाउंसेस एज 18,000. और यहाँ पे चिल्ड्रन अलाउंस ये पूरा आपका एग्जाम्प्टेड है, फिर भी वी हैव टू शो इट हेयर, तो विल जस्ट शो इट 1800 आपका. एंड नाउ सी, आपका पर के शीट्स में एकोमोडेशन आएगा, वहां पे आपको फिल करना है. तो रिमेंबर द पॉइंट फ्रॉम बेसिक सैलरी, किसमें होता है ना कि फिट्स पर के शीट्स इज रेंट और लीज पे होता है, तो 50% ऑफ सैलरी और द रेंट विच इज गिवन, जिसमें विच एवर इज लो. तो यहाँ पे आपको अमाउंट वैसे भी ऑलरेडी दिया हुआ है, बट अगर नहीं दिया है तो वी हैव टू कैलकुलेट सबसे पहले 15% ऑफ सैलरी, और सैलरी पे यहाँ का मतलब होता है बेसिक सैलरी में अलाउंसेस को प्लस करना. तो बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस कर देंगे, इसका 15% ले लेंगे. दैट इज गिवन, अपने को यही दिया है 49,014,200 आप गिवन है, तो विल पुट इट ऑन. और नीचे जाके जो आपके डिडक्शंस है उनको माइनस करना होता है. लीव सैलरी है तो ये आपका रिटायरमेंट बेनिफिट है 42,000, तो लीव सैलरी यहाँ पे आपका इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर सेक्शन में आ जाएगा 42,000. और नीचे आपके डिडक्शंस में डिडक्शंस फिल कर देंगे हम, जो कि बेसिकली अपना एक डिडक्शन है जो कि हमके चिल्ड्रन एजुकेशन पे मिल रहा है. तो हम सेक्शन 10-14 सब सेक्शन 1 में क्लिक करेंगे और विल जस्ट पुट इट द अमाउंट 1800. Okay, after that validate the sheet. Now details from income from house property is given to us, so we'll go, and here also all the red details have to be filled, so we'll just select it everything. Is the property co-owned? No.
और ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ ही है। और टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको गिवन है कि देखो रेंट ऑफ ग्राउंड फ्लोर एंड रेंट ऑफ फर्स्ट फ्लोर, तो इट इज लेट आउट। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट कर देंगे तो आपके जितने भी टेनेंट है उनकी डिटेल्स फिल करनी है, डॉक्टर श्याम बिहारी और जुगल फर्नीचर। तो श्याम बिहारी में देयर इज नो टीडीएस, मतलब आपका टैक्स डिडक्शन नहीं है, पर जो आपके सेकंड टेनेंट है जुगल फर्नीचर उनका टैक्स डिडक्शन है। और नीचे आप बॉक्स में देख सकते हो क्वेश्चन में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में आपका इनका 10 नंबर दिया है, तो विल फिल द 10 डिटेल्स। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको पूरी ग्रॉस वैल्यू लिखनी होती है। तो टोटल आपका 4 लाख श्याम बिहारी का आएगा और जुगल फर्नीचर का 5,40,000 है, जिसका 10% उन्होंने टैक्स कटा है तो 60,000, इसको भी ऐड करके 5,40,000 प्लस 60,000 6 लाख, और जो पहले आपके श्यामलाल है श्याम बिहारी उनके 4 लाख, तो ये 10 लाख टोटल आपका आएगा ग्रॉस में, क्योंकि ग्रॉस में वी हैव टू ऐड द वैल्यू ऑफ टैक्स ऑल्सो। सो मूविंग ऑन, यहाँ पे टैक्स पे टू लोकल अथॉरिटीज भी दिया है, म्युनिसिपल टैक्स दैट इज 34,000, विल फिल द डिटेल हियर। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर रिन्यूअल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये आपका यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल कैन नॉट एक्सीड 2 lakhs इफ नॉट लेट आउट, बट इट दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट तो वी कैन राइट इट होल अमाउंट 6,60,000। That's all in this section. Will validate the sheet. ओके तो रिमेंबर अगर टेनेंट है तो आपका लेट आउट जाएगा और टेनेंट के डिटेल्स आएंगे। हाउस प्रॉपर्टी में ग्रॉस है, अगर पहले ही टैक्स कट गया है तो उसका ग्रॉस दिखाना है, वी हैव टू एडिट बैक हियर। टैक्स अथॉरिटीज लोकल अथॉरिटीज को यहाँ जाएंगी, इंटरेस्ट पेएबल है तो विल गो इन दैट सेक्शन। नाउ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो इट्स ओएस अदर सोर्स इनकम, यहाँ पे हम फिल करेंगे अपने डिटेल्स। और अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो तो जब शीट वैलिडेट करोगे तो डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, इट विल शो यू कि आपका कहाँ पे मिस्टेक है, तो यू जस्ट हैव टू फाइंड कि कई बार होता है कि हमने किसी सेक्शन में डिटेल्स नहीं फिल किया है, तो दैट विल आस्क यू टू फिल द डिटेल्स एंड जस्ट फिल इट एंड देन वैलिडेट। नाउ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अपने को सेविंग फ्रॉम बैंक अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट सेविंग है तो यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक आपका 37,000 आ जाएगा। देन डिविडेंड फ्रॉम टाटा पेपर्स लिमिटेड, टीडीएस आपका रेट 10% है, तो ये रिमेंबर टीडीएस मतलब अपना ऐड होता है, ग्रॉस वैल्यूज ही यहाँ पे आती हैं, तो इनकम अंडर डिविडेंड में आप यहाँ पे फिल करोगे क्योंकि ऊपर नहीं फिल होता है अभी, जब यहाँ पे फिल करके वैलिडेट करोगे तो वो अपने आप ऊपर चला जाएगा। तो डिविडेंड इनकम में अपना 26,000 डिविडेंड है और प्लस आपका 3,000 यहाँ पे टीडीएस कटा है, तो विल ऐड दैट अमाउंट टू, तो टीडीएस का अमाउंट और डिविडेंड 27,3,000 तो 30,000 यहाँ पे आ जाएगा। ओके और 37,000 ऑलरेडी है सेविंग इंटरेस्ट में। और आपका है सिल्वर चेन रिसीव फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट फ्रेंड ऑन बर्थडे ऑफ द एसएससी, मार्केट वैल्यू इज गिवन 74,000, तो फ्रेंड से मिला है बर्थडे पे तो दैट विल बी अंडर द, इट विल बी लाइक टैक्सेबल, तो ये यहाँ पे आपका 74,000 आ जाएगा। इनकम ऑफ नेचर रेफर टू सेक्शन 56, 74,000 आ जाएगा। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी, तो 74,000 आएगा। एंड देन आफ्टर दिस विल वैलिडेट द शीट, तो ये अपने आप वैलिडेट हो जाएगा। नाउ वी हैव इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर, जो आपका बेसिकली डिडक्शंस होते हैं, तो सबसे पहले हम एटीडी मेडिकल डिडक्शंस में चलते हैं। यहाँ पे आपका लास्ट के 3 पॉइंट्स देखो कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एसएससी स्पाउस और माइनर डॉटर का गिवन है, ऑफ इंडिपेंडेंट सन का गिवन है, और फादर एंड मदर बोथ आर सीनियर सिटीजन्स। तो सीनियर सिटीजन स्पाउस और माइनर चाइल्ड का तो आएगा, पर जो इंडिपेंडेंट सन है उसको कोई भी एक्सेप्शंस नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे पहले वेदर यू एंड योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग इज अ सीनियर सिटीजन, तो कोई नहीं है। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस में 14,000 आ जाएगा, जो कि प्रोवाइडेड है माइनर डॉटर और स्पाउस का 14,000। यहाँ पे वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट इज सीनियर सिटीजन, यस दोनों ही सीनियर सिटीजन है। फिर यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस पे इनका 28,000 आ जाएगा, बस इतना ही आएगा एंड देन विल वैलिडेट द शीट। और आगे का जो आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एनपीएस आपके डिडक्शन है, तो ये आपका 6A में जाएगा। ओके अब 6A में पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये आपको एटीसी में दिख रहा है तो एटीसी में फिल कर देंगे। और जो आपका एनपीएस है ये पेंशन सर्विसेज है,
तो पेंशन सर्विसेज आपकी 80 CCD 1B में फिल करना है इसको, क्योंकि ऊपर करते हो तो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आती हैं, तो CD 1B में 73,000 बस अपने को फिल करना है। और एक हिडन एडजस्टमेंट होता है यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक इन केस ऑफ अदर देन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन्स, मतलब अगर सीनियर सिटीजन्स के अलावा, मतलब आपका सेविंग बैंक में इंटरेस्ट है जो कि था हमारा 37,000, तो वो यहाँ पे हमें पुट करना है। एंड आफ्टर दिस विल वैलिडेट द शीट। तो आपका ये पॉइंट भी हो गया है। अब हमें फिल करना है टैक्स डिटेल्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड, तो जो कि आईटी में होता है, अंडर द सेक्शन आईटी विल गो हियर। और यहाँ पे कुछ नहीं, आपको डिटेल्स फिल करनी है बस। आपको बीएसआर कोड दिया है, चालान नंबर दिया है, और ये डेट, बीएसआर, अमाउंट, अमाउंट भी आपका 26,000 है, ये आपको बस फिल करना है एंड वैलिडेट कर देना है। और आफ्टर दैट हम टीडीएस में चलते हैं, टैक्स डिडक्शंस में। Where is TDS? Yeah, okay. Okay. तो यहाँ पे जाके आपको टैक्स डिडक्शन, आप देखो बाय एम्प्लॉयर 10 नंबर दिया है आपको, नेम ऑफ एम्प्लॉयर हमें पता था गुजरात लिमिटेड है, और इनकम चार्जेबल अंडर द, पहले ये देख लो टोटल टैक्स डिडक्टेड भी यहाँ पे सामने क्वेश्चन में दिया है अपने को 83,75,000, तो विल फिल द डिटेल्स। और इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरीज में आपको वापस शेड्यूल एस सैलरीज वाले शीट पे जाना होगा, और जो सबसे नीचे आपकी सैलरी कैलकुलेट करके दी है ना 22 करोड़ आई गेस 33 एंड व्हाटसोएवर, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ओके, तो विल फिल दिस अमाउंट ऑफ सैलरीज हेयर, इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरीज। ओके, और यहाँ पे एम्प्लॉयर्स डिटेल आता है, और यहाँ पे आपके टेनेंट और जितने भी डायरेक्टर्स हैं जिनसे हमें मिला है, मतलब जिनको हमारे वजह से टैक्स पे करना पड़ा है या उन्होंने पे किया है, तो वो यहाँ पे आपका टीडीएस 2 में आता है, टीडीएस 1 में एम्प्लॉयर का आता है। तो टीडीएस 2 में हमारा टेनेंट का आएगा और टाटा पेपर्स का आएगा, तो टेनेंट सेल्फ सेल्फ दोनों में जाएगा, इनका 10 नंबर हम लिख देंगे। और यहाँ पे देखो डिडक्टेड इन ओन हैंड्स और क्लेम्ड इन ओन हैंड्स, जितना भी आपको अमाउंट गिवन है वो दोनों 60,000 3,000 सेम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ग्रॉस अमाउंट अपने आप आ जाएगा। फिर आपका इनकम, मतलब हेड ऑफ इनकम क्या है, तो टेनेंट का तो हाउस फ्रॉम प्रॉपर्टी है, विल सेलेक्ट दिस। और इनकम, क्योंकि डिविडेंड का आपको गिवन था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में आएगा। ओके, बस इतना ही करना था इसमें भी। तो आफ्टर दिस विल वैलिडेट द शीट। इसके बाद हमारा लास्ट एक शीट रह जाता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, तो विल गो टू एल। एसेट्स एंड लायबिलिटी में सबसे पहले देखो मूवेबल और इमूवेबल। हाउस प्रॉपर्टी आपका इमूवेबल एसेट है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में यस क्लिक करोगे और हाउस प्रॉपर्टी के डिटेल्स फिल कर दोगे, और अमाउंट आपको गिवन है 6,10,000, तो वो अमाउंट कर दोगे। अब मूवेबल एसेट्स जो हैं हमारे, उनको हम फिल कर देंगे। तो सबसे पहले व्हीकल्स, मोटर कार है, मोटर कार का व्हीकल्स में फिल कर देंगे। कैश इन हैंड अपने को गिवन है, कैश इन हैंड कर देंगे। और लास्ट में एक चीज देखिए कि लोन टेकन टू परचेज कार आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो मतलब ये अपनी लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे लाइबिलिटीज इन रिलेशन टू ए प्लस बी एसेट्स में आ जाएगा लाइबिलिटी। बाकी एल्सवेयर वी हैव टू पुट 0, तभी वैलिडेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बाकी जो भी फंक्शन नहीं है, मतलब जहां भी हमारा कुछ नहीं है, वहां पे हम 0 पुट कर देंगे और उसके बाद वैलिडेट करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज डन। अब अपने को वेरिफिकेशन पे जाना है। वंस यू वैलिडेट एवरी सेक्शन ना, तो यहाँ पे सारा डिटेल्स अपने आप आ जाएगा, बस यहाँ पे आपको फादर्स नेम जो कि क्वेश्चन के फर्स्ट टेबल में ही दिया है वो फिल करना होगा, और यहाँ पे सेल्फ करके आपको वैलिडेट कर देना है शीट। अब टैक्स कैलकुलेट हमारा पार्ट बी में होगा, उससे पहले हमारा बैंक डिटेल्स रह जाता है। अभी हमने बैंक डिटेल्स कहीं भी फिल नहीं किया है, तो यहाँ पे 18 जो सेक्शन है वहां पे आपको पूछता है कि डू यू हैव अ, पार्ट बी में 18 सेक्शन पे देखना, डू यू हैव अ बैंक अकाउंट इन इंडिया, तो यस क्लिक करोगे और जितने भी आपके बैंक डिटेल्स है उन पे क्लिक कर दोगे। ओके, और यहाँ पे नो क्लिक हो जाएगा। मिनट, यहाँ पे आपका डू यू हैव एनी टाइम, डू यू एट एनी टाइम इन द प्रीवियस ईयर,
आपका नो हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाके शीट को वैलिडेट करना है और यहीं पे देखो कैलकुलेट टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, तो वंस यू क्लिक ऑन द कैलकुलेट टेक्स्ट तो थोड़ी बहुत उनके परसेंटेज डाउनलोडिंग एंड बफरिंग होगी। उसके बाद आपको आपका टेक्स्ट कैलकुलेट हो जाएगा और वो किधर पता चलेगा, यही पार्ट बी में सेक्शन 92 पे आप देख सकते हो समवेयर। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट पेएबल आपका 5000 आ गया ना, तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस इज एवरीथिंग, लाइक जितना भी इस क्वेश्चन में था अपने को डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे आपको करना है, बस एक्सेप्शंस और उन सब का ध्यान रखना है किस हेड में क्या आएगा, डायरेक्शंस ध्यान रखना है कि कौन से डायरेक्शंस किस में जाएंगे। बाकी आपको क्वेश्चन में जैसा भी बोला है यू जस्ट डू इट, उसके बाद वेरिफिकेशन कर दो। वेरिफिकेशन करने के बाद पार्ट बी से बैंक डिटेल्स फिल करके कैलकुलेट टेक्स्ट एंड द क्वेश्चन इज डन। थैंक यू।